Hello everyone, thank you for being here. Myself Alka Alexander from Jaiswal College of Nursing. I am here to talk you about the basic principles of psychiatric nursing. Before going to our topic or before focusing on our topic, let me tell you some introduction about psychiatric nursing. I have written the 3 points which has been asked in a competitive examinations, that is first psychiatric nurse, that is Miss Linda Richard. Then father of modern psychiatric nursing, Sigmund Freud. You have all heard about this, who is Sigmund Freud. He has given the developmental theories in pediatric nursing, and all this you have heard about it. That he is also known as the father of modern psychiatric nursing. Next we goes that father of American psychiatric nursing, that is Benjamin Rush. You should never be confused about two. Benjamin Rush is an American psychiatric nursing, and Sigmund Freud is the father of modern psychiatric nursing. Other comparison or other difference between them is Benjamin Rush he has published his first psychiatric book. Now let's move on to the next, that is definition. What is psychiatric nursing definition? Psychiatric nursing deals with the promotion of mental health, prevention of mental illness and care of mentally ill individuals. That means you have to promote the mental health about the mental illness persons, then prevent their mental illness, and if the patient is coming to you in a hospital, you have to take care of their ill by their individuals. Now we'll move to our main topic, that is the basic principles of psychiatric nursing. It has been written 14 points. I'll explain you one by one. The first point is accept and respect the patient as individuals. Accept and respect the patients as individual. इसका मतलब होता है स्वीकार करना. जैसे आपके पास कोई पेशेंट आता है, आपके कांटेक्ट में आता है, इज़ मेंटली इल, आप उस पेशेंट को जैसे वो आ रहा है वैसे ही आप उसे एक्सेप्ट करिए, उसकी रेस्पेक्ट करिए, एंड थ्रू आउट द डे यू हैव टू केयर. जो भी आप केयर दे रहे हो वो थ्रू आउट द टाइम आपको वो कैसे केयर करना चाहिए. दैट इज़ द फर्स्ट पॉइंट, एक्सेप्ट एंड रेस्पेक्ट द पेशेंट एज इंडिविजुअल. Now further move on, that is reassurance. Reassurance मतलब उसकी जो भी doubts हैं, जो भी वो doubts लेके आ रहा है, not only the patient but also the patient parties. आपको उसकी सारे doubts को क्लेरिफाई करना है. ऐसे नहीं कि जो पेशेंट आपके पास आ रहा है तो आप उसे वापस और ज़्यादा एंजाइटी कर रहे हो. उसे क्या करना है, एक सांत्वना देना है. दैट इज़ रिमूव ऑल द डाउट्स एंड क्लियर हिम अबाउट हिज मेंटल इलनेस और अबाउट द डिसीज कंडीशन. दैट इज़ अवर सेकेंड पॉइंट, दैट इज़ रीएश्योरेंस. Now further move on to our next third point, that is consistency in behavior and care. Consistency means a similar way. जैसे ही आपके पास कोई पेशेंट आया, आप उसे केयर प्रोवाइड कर रहे हो, फ्रॉम द फर्स्ट अप टू द टिल पॉइंट, अप टू द एंड पॉइंट, आपका जो केयर होना चाहिए वो कहना सिमिलर वे होना चाहिए, इन अ कॉन्स्टेंट वे होना चाहिए. दैट इज़ द कंसिस्टेंसी इन बिहेवियर एंड care. That is our third point. Now further move on to the fourth point, that is change the behavior by emotional experiences. आप सभी को पता है हम हर एक्सपीरियंस को पास आउट करने के लिए एक इमोशनल एक्सपीरियंस होता है. अगर हमें ज़्यादा खुशी हुई तो हम हंस के दिखा देंगे, वो हैप्पीनेस. देन अगर हम डिप्रेस्ड हुए तो सैडनेस, एक जगह अलोन बैठना. ठीक है, तो हर बिहेवियर को चेंज करता कौन, थ्रू द इमोशनल एक्सपीरियंसेस. लाइक अगर आपके पास कोई पेशेंट आया, अब हमें उसे चेंज कर रहे हैं बाय थ्रू द इमोशनल experience. हर patient in the normal also the patient also their behavior changes as per their emotional experience. That is our fourth point. Now further move on to the next point, that is avoid unnecessary increase in patient's anxiety. ऑलरेडी वो पेशेंट किसी चीज़ से डर के या बहुत सारे डाउट्स लेके ऑलरेडी आपके पास आया हुआ था. आप ऐसा नहीं करोगे कि अननेसेसरी कोई भी ऐसी चीज़ें जो चीज़ उसको डरा रहा है, जो उसको फियर क्रिएट कर रहा है, वो चीज़ें बोल के आप उसमें और ज़्यादा एंजाइटी क्रिएट नहीं करोगे. यू शुड ऑलवेज अवॉइड अननेसेसरी
that increase their anxiety. That is the main point. Now further, that is sixth point, maintain TNPR, that is therapeutic nurse patient relationship. थेरापेटिक नर्स पेशेंट रिलेशनशिप मतलब एक ट्रस्ट। जब आपके पास में, हम नर्स हैं, अगर हमारे पास में कोई पेशेंट आता है, देयर शुड बी अ थेरापेटिक नर्स पेशेंट रिलेशनशिप। एक ट्रस्ट होना चाहिए, दैट द पेशेंट शुड ट्रस्ट अ नर्स। वो सारी बातें, जितनी भी बातें हैं, वो क्लियरली आपसे कह सके और आप उसको सॉल्यूशंस कर सके। दैट इज़ अ थेरापेटिक नर्स पेशेंट रिलेशनशिप। जो केयर से रिलेटेड आपको जो भी चीज़ें आपको उनको क्लियर करना हो, वो आपसे जितनी भी डाउट्स है वो क्लियर करना हो, वो आराम से ईजिली कम्युनिकेट कर सकें। दैट इज़ अ मेंटेन TNPR, दैट इज़ थेरापेटिक नर्स पेशेंट रिलेशनशिप। नाउ नेक्स्ट, द सेवेंथ पॉइंट, नर्स शुड नॉन जजमेंटल। आप स्पेशली द मेंटली इल पेशेंट आ रहे हैं, हम ऐसे नहीं कर सकते कि उस पेशेंट ने ऐसे हमारे साथ बिहेव किया है तो हम उसके साथ भी वैसे बिहेव करें। यू शुड नेवर बी अ जजमेंटल, यू शुड ऑलवेज बी अ नॉन जजमेंटल। हम उस पेशेंट को उनकी बीमारी, उनके डिसऑर्डर के जैसे हम उनसे बिहेव नहीं कर सकते हैं। आपको वो जो भी आपके साथ में वो कर रहा है, कोई भी मिसबिहेव कर रहा हो, कोई भी मिसचेफ कर रहा हो, तो आप क्या करोगे, उसे नॉन जजमेंटली आप उसको केयर प्रोवाइड करोगे। दैट इज़ द पॉइंट, नर्स शुड नॉन जजमेंटल। Next, further we move on, the 8th point, that is provide care based on diagnosis. It is the most important point, क्योंकि मैं आपको एक चीज़ बता देती हूँ, दैट इज़ ऐसे बहुत सारे डिसऑर्डर्स हैं जिसके सिम्टम्स सेम होते हैं, ठीक है, बट उसकी डायग्नोसिस और उसके डिसऑर्डर्स क्या होते हैं, डिफरेंट होते हैं। तो हम केयर, सेम केयर या सेम ट्रीटमेंट नहीं दे सकते हैं, ठीक है। जैसा कि नॉर्मली अगर आपको डेंगू हुआ है, फीवर इज़ अ सिम्टम, अगर ऐसे ही मलेरिया में हुआ है तो फीवर इज़ अ सिम्टम, तो सेम सिम्टम्स हैं, ठीक है, बट द डायग्नोसिस क्या है, डिफरेंट है। सेम इन अ मेंटल हेल्थ में, मेंटल डिसऑर्डर्स में भी बहुत सारे सिम्टम्स क्या हैं, वो सेम होते हैं, बट देयर डायग्नोसिस आर डिफरेंट एंड द ट्रीटमेंट ऑल्सो गिवन एज पर देयर डायग्नोसिस। दिस इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग। आप जो केयर प्रोवाइड कर रहे हो, एज पर देयर डायग्नोसिस के थ्रू आप उसको केयर प्रोवाइड करोगे। नेक्स्ट वन, यूज़ ऑफ एप्रोप्रिएट लैंग्वेज, ठीक है। अगर आपके पास में कोई पेशेंट आ रहा हो और आप उनसे इंग्लिश में बात कर रहे हो तो पेशेंट समझ सकेंगे नहीं, तो वही लैंग्वेज यूज़ करिए जो कि पेशेंट ईजिली आपकी बात समझ सके। आप जो केयर प्रोवाइड कर रहे हो, आप उसको कुछ भी डाउट्स क्लियर कर रहे हो, तो उनके लोकल लैंग्वेज में जो ईजिली वो अंडरस्टैंड कर सके, उसी लैंग्वेज में आप उन्हें समझाएं। दैट इज़ द मेन थिंग, यूज़ ऑफ एप्रोप्रिएट लैंग्वेज, ठीक है। नाउ नेक्स्ट फर्दर मूव ऑन टू द 10th पॉइंट, दैट इज रिकॉग्नाइज द स्ट्रेंथ ऑफ पेशेंट। अगर हम जैसे कोई काम कर रहे हैं, कोई हमें अप्रिशिएट कर रहा है, तो अप्रिशिएट करने से क्या होता है, हमारे अंदर एक पॉजिटिव थिंग्स आती है, पॉजिटिव मोटिवेशंस मिलते हैं हमें, तो हम क्या करते हैं, उसको ज़्यादा स्ट्रेंथन करने की कोशिश करते हैं और हम और अच्छे करने की कोशिश करते हैं। सेम थिंग, अगर पेशेंट आया है एकदम डाउटफुल आया है, एकदम डाउटली आया, तो पेशेंट क्या होता है, डिप्रेस्ड होता है। अगर हम उसको इंकरेज करें, उसकी हर छोटी छोटी सी क्या कहते हैं, उसके रिजल्ट्स या इवैल्यूएशन को हम क्या करें, अप्रिशिएट करेंगे, तो पेशेंट क्या करेगा, ज़्यादा से ज़्यादा नॉर्मल फंक्शनिंग में आएगा। दैट इज़ द थिंग, रिकॉग्नाइज द स्ट्रेंथ ऑफ द पेशेंट। इट मीन्स स्ट्रेंथ मतलब अप्रिशिएट करना, जितना ज़्यादा आप उसे अप्रिशिएट करोगे, वो उतना ज़्यादा क्या होगा, जल्दी से अपना रिकवर हो जाएगा। दैट इज़ अवर 10th पॉइंट। नाउ फर्दर मूव ऑन टू द 11th पॉइंट, नर्स नीड टू बी एक्टिव लिसनर, ठीक है। नर्स शुड बी एन एक्टिव लिसनर। ऐसे नहीं कि आपके पास कोई पेशेंट आया और आप डायरेक्टली उससे कुछ भी बोल नहीं रहा है, आपको डायग्नोस पता चल गया और उसकी बात ना सुन के आप अपना केयर प्रोवाइड कर रहे हो, कोई TNPR नहीं है, कुछ नहीं है, कुछ उसकी बातें नहीं सुन रहे हो, आप अपनी क्लियरिटी देते जा रहे हो। दैट इज़ द रॉन्ग मैथड,
ठीक है। द नर्स शुड बी एन एक्टिव लिसनर, मतलब जो पेशेंट या पेशेंट पार्टी कोई भी हो, जो भी आपसे जो भी कह रहा है इससे रिलेटेड, वो अपने हेल्थ से रिलेटेड ही आपसे बात करना चाह रहा हो, तो आपको क्या करना है, उसे अच्छे से सुनना है। देन जब आपको मौका मिले, जब आपको अपना उसको प्रॉब्लम सॉल्व करना हो, तब आप अपना जवाब या उसको एक्सप्लेनेशन या उसके ट्रीटमेंट के बारे में एक्सप्लेन या एजुकेट कर सकें। दैट इज़ अवर पॉइंट। नर्सेज नीड टू बी एन एक्टिव लिसनर। उनकी बातों को सबसे पहले सुनने के बाद में, क्लियर करने के बाद में फिर आप अपनी क्लियरिटी दें। Now we further move to the next point, that is 12th point. Nurse should show professional interest. Professional interest यानी आप नर्स हैं, ऐसे नहीं कि आप जैसे घर में कोई पेशेंट आ रहा है या घर में कोई भी आ रहा है तो आप उसकी ऐसे ही टेक केयर कर रहे हो, कुछ भी बोल रहे हो। आप अपने कोड ऑफ एथिक्स नहीं भूलेंगे। दैट इज़ आपके पास जो भी पेशेंट आ रहे हैं तो आपको क्या, एज ए प्रोफेशनल इंटरेस्ट, आप एक नर्स है, एज ए प्रोफेशनली आप उसको केयर प्रोवाइड करेंगे। जितनी लीगली हो सके या अनलीगली, यू कैसे भी हो सके, आप लॉजिकली उसे आंसर्स करेंगे, उसे क्वेश्चंस पुटअप करेंगे, उसके क्वेरीज को क्लियर करेंगे इन अ प्रोफेशनल वे। नाउ नेक्स्ट पॉइंट, दैट इज 13 पॉइंट, यूज सेल्फ अवेयरनेस। यूज सेल्फ अवेयरनेस मतलब खुद की इंटरेस्ट क्या है। आप ऐसे नर्स काम कर रहे हो, आपको इंटरेस्ट होना चाहिए। आपके पास एक पेशेंट है, इंटरेस्टिंगली आप अपने बारे में इनसाइट क्या है, आप सेल्फ ऑब्जर्वेशन क्या कर रहे हो, ठीक है, आपको उसके बारे में नॉलेजेस है या नहीं, दैट यू शुड ऑलवेज नो। दैट इज़ अ सेल्फ अवेयरनेस। आप उस चीज़ के बारे में, या कोई भी डिसीज़ कंडीशंस आ रहे हैं तो आप उसके बारे में कितना अवेयर है, उस डिसीज़ कंडीशन के बारे में कितना अवेयर है, आगे वाला मेंटली इल पेशेंट है वो कितना वायलेंट हो सकता है, वो कैसे अपने एक्शंस कर सकते हैं, वो सब चीज़ें आपको अवेयर होना चाहिए। दैट इज़ अ यूज सेल्फ अवेयरनेस। नाउ द लास्ट पॉइंट, टॉक विथ स्पेसिफिक गोल्स। ठीक है, हर गोल का एक सक्सेस या मोटिव या परफॉर्मेंस होता है जिसका लास्ट जो है वो बेटर रिजल्ट में आता है। ठीक है, जो आप केयर प्रोवाइड कर रहे हो उसका एक स्पेसिफिक गोल होना चाहिए, आप जो बात कर रहे हो उसका एक मोटिव होना चाहिए। दैट इज़ अ मेन पॉइंट, लास्ट पॉइंट, दैट टॉक विद द स्पेसिफिक गोल्स। अगेन मैं आपको एक बार और रिपीट करा देती हूँ क्या क्या हमने पॉइंट्स पढ़े हैं, बेसिक प्रिंसिपल्स। फर्स्ट पॉइंट था हमारा, एक्सेप्ट एंड रेस्पेक्ट द पेशेंट्स एज इंडिविजुअल। जैसा पेशेंट आपके पास आ रहा है उसे वैसे ही एक्सेप्ट करें और उस वैसे ही आप उसकी रेस्पेक्ट करें और वैसे ही आप उसको केयर प्रोवाइड करें। सेकेंड पॉइंट चलते हैं, दैट इज़ री एश्योरेंस। री एश्योरेंस मतलब सांत्वना देना। दैट इज़ अगर आपके पास पेशेंट आ रहा है तो वो अपनी एक बहुत बड़ी डाउट्स के साथ में आ रहा हो, बहुत क्या कहते हैं डिस्टर्ब्ड आ रहा हो, तो आप उसको क्या करें, उसकी क्लियर, उसकी जो जितनी भी डाउट्स हैं उसको आप क्लियर कर सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट, कंसिस्टेंसी इन ए सिमिलर वे। जैसे आपके पास पेशेंट आता है आप उस पेशेंट को फ्रॉम द फर्स्ट टू द एंड, ठीक है, आप एक सेम वे में केयर प्रोवाइड करोगे। ऐसे नहीं कि स्टार्टिंग में आया अच्छे से केयर प्रोवाइड किया, फिर पेशेंट थोड़ा सा पुराना हो गया तो हमने केयर करना छोड़ दिया, ऐसे नहीं। जैसे आप फर्स्ट से उस पेशेंट को अप टू द डिस्चार्ज तक आप उस पेशेंट को कैसे करेंगे, सिमिलर वे में आप उसकी केयर प्रोवाइड करेंगे। नेक्स्ट, चेंज द बिहेवियर बाय इमोशनल एक्सपीरियंस। हर बिहेवियर में कोई ना कोई इमोशंस होता है, सेम थिंग मेंटली इल पेशेंट्स में भी हम उसको चेंज, उसके बिहेवियर को चेंज कर सकते हैं बाय द इमोशनल एक्सपीरियंसेस। नेक्स्ट, अवॉइड अननेसेसरी इंक्रीज ऑफ पेशेंट एंजाइटी। ऐसी कोई भी हरकत ना करें जिससे कि पेशेंट ओवर या एंजाइटी उसको हो, ठीक है। देन मेंटेन TNPR, दैट इज थेरापेटिक नर्स पेशेंट रिलेशनशिप। आप उस पेशेंट में हरदम क्या एक ऐसा ट्रस्ट बनाए रखें पेशेंट के साथ में ताकि वो ईजिली वो आपके साथ में कम्युनिकेट कर सके और वो अपनी सारी प्रॉब्लम्स आपके साथ में सॉल्व कर सकें। देन द नर्स शुड नॉन जजमेंट, कभी भी पेशेंट के साथ में जजमेंटली या कोई मकसद रख के ऐसे उसके साथ में केयर प्रोवाइड करने में कोई कमी ना रखना, दैट इज़ नॉन जजमेंट। देन प्रोवाइड केयर बेस्ड ऑन डायग्नोसिस, लाइक सेम सिम्टम्स होते हैं बट उनके डायग्नोसिस डिफरेंट होते हैं, तो एज पर इसके डायग्नोसिस उसको केयर प्रोवाइड करना।
देन यूज़ ऑफ अप्रोप्रिएट लैंग्वेज, जैसा कोई उसकी समझ में आए उस लैंग्वेज में आपको उनसे बात करना है. देन रिकॉग्नाइज द स्ट्रेंथ ऑफ द पेशेंट. रिकॉग्नाइज मतलब उसकी जितना ज़्यादा आप अप्रिशिएट करोगे वो उतना ज़्यादा मोटिवेट होगा और उतना ज़्यादा वो रिकवर होने की कोशिश करेगा, अपने आप सेल्फ केयर हो जाएगा. देन नेक्स्ट वन 11th पॉइंट, नर्स need to be an active listener. You should always listen to your patient, not only the patient but also your health team members. नेक्स्ट, नर्स शुड शो प्रोफेशनल इंटरेस्ट. आप एक प्रोफेशनल वर्कर हैं तो आपको एज ए प्रोफेशनल इंटरेस्ट हर पेशेंट में, हर इंडिविजुअल्स में आपको अपना इंटरेस्ट दिखाना है. देन यूज सेल्फ अवेयरनेस. आप एक फील्ड में काम कर रहे हैं तो आपको उस फील्ड के बारे में सेल्फ अवेयर होना चाहिए, प्लस आप खुद उस फील्ड के बारे में कितना जानते हो वो सब आपको होना चाहिए. देन टॉक विद द स्पेसिफिक गोल्स. आप कोई भी गोल, आप कुछ भी बात कर रहे हो, कुछ भी आपको पेशेंट आ रहा है तो एक स्पेसिफिक गोल रखिए कि ठीक है हम उसको रिकवर करके ही उसे यहाँ से डिस्चार्ज करेंगे. दैट इज़ द टॉक विद द स्पेसिफिक गोल्स. थैंक यू. Like and subscribe our channel, Jaiswal College of Nursing.